Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. Thank you for joining us on the 22nd episode of Revision through MCQs. In this particular video, I am going to quickly take you through a lot of topics as usual. The topic sources are from The Hindu, Indian Express, Economic Times, Press Information Bureau, DD News, and a lot of other sources that usually a CLAT aspirant should refer to. And most of the times I have tried to include questions from areas which are either of today itself and which are from this particular week, and sometimes we go back in time and I give you questions from the untouched topics of January, February, March as well. So the revision through MCQ series is going to definitely play a game changer role for those students, those who are usually confused and are not enrolled in any coaching institution. They are not able to take GK classes and they are directionless about GK preparation. So in our channel we have a lot of episodes coming from the current affairs point of view. That includes weekly current affairs, that includes the marathon, and revision through MCQs is also one part of it. On our channel you will find that every morning 10:30 a.m. there is a Hindu analysis that is taken by Swatantra sir, and that particular analysis goes on for 1.5 hours or so. So a lot of students, those who are preparing on their own self or relying on Law Prep Tutorials YouTube channel, can find these lectures playing a game changing role in their preparation, in their current affairs preparation. So with this thought, as you know, in RTM the very first thing that we start is, सबसे पहले मैं आपसे एक लीगल क्वेश्चन पूछता हूँ. अब लीगल क्वेश्चन आज हमारे सामने आर्टिकल 131 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो पूछता है कि वेदर आफ्टर विड्रॉइंग द कंसेंट ऑफ सीबीआई बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सीबीआई कैन स्टिल रजिस्टर द केसेस. इज इट अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच? Now, judicial overreach and allowing judicial overreach, judicial activism and all of this is one concept. So let me tell you about that. देखिए, judicial activism क्या है? Judicial activism is the role played by Indian courts, the role played by Indian courts, and that includes the High Court as well as the Supreme Court, to intervene in policy areas, टू इंटरवीन इन पॉलिसी एरियाज, ठीक है, और इंटरवीन इन लेजिस्लेशन प्रोसेस, लेजिस्लेटिव प्रोसेस. मतलब सेपरेशन ऑफ पावर जो हमने अमेरिका से लिया है, कई बार हमारी कोर्ट्स जो होती हैं वो कोशिश करती हैं कि अगर कोई सरकारी पॉलिसी या कोई ऐसा लॉ जो लेजिस्लेशन ने पास, लेजिस्लेटिव असेंबली ने या पार्लियामेंट ने पास किया है, तो उस पर वो कई बार नज़र रखती हैं, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करती हैं, तो वो अपने जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज़ करते हुए कई बार डायरेक्शंस बना देती हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान अपने आप में केस है, जहाँ पे जुडिशरी ने बताया था कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर गाइडलाइंस बनना ज़रूरी है. तो डायरेक्शंस इशू कर देती है कोर्ट, कई बार पीआईएल को मेंटेन करके कुछ जनरल नॉर्म्स बना देती है. तो ये सब चीज़ें जुडिशल एक्टिविज्म में आती हैं एंड इट्स ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव थिंग. लेकिन जो जुडिशल ओवर रीच है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव. ठीक है, जुडिशल ओवर रीच को कहते हैं कि जुडिशरी जब सेपरेशन ऑफ पावर जैसे कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली वॉयलेट कर दे. देखिए, कभी कभी जुडिशरी का इंटरवेंशन नेसेसिटेटेड होता है, वारंटेड होता है, रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि किसी भी सिटीज़न के warranted to protect citizens fundamental right, okay. But sometimes what happens, कोर्ट ओवरस्टेप कर लेता है बाउंड्री को, तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जुडिशियल ओवररीच का. तो यहाँ पे सीबीआई में हमेशा कंसेंट की बात होती है. जो स्टेट है ना, वो कंसेंट इशू करता है, कंसेंट देता है, प्रोवाइड करता है सीबीआई को दो तरह की. एक स्पेसिफिक कंसेंट होती है, ठीक है, और दूसरी जनरल कंसेंट होती है. अगर स्पेसिफिक कंसेंट दी है तो केस टू केस बेसिस पे सीबीआई को बार बार क्या है, अनुमति लेनी पड़ेगी. और जनरल कंसेंट है तो रिपीटेड कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. अब जैसा कि आप सीबीआई के बारे में जानते हैं कि वो एक तरह की एग्जीक्यूटिव बॉडी है और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है. किसके अंदर आती है? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है. यहाँ पे बहुत बार हमें ये देखने को मिला है
इस केस में कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होने के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने कह दिया है कोर्ट के सामने कि सर ये ऑटोनॉमस है और ये हमारे अंदर नहीं आती, दिस इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड वी डोंट रेगुलेट दैट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को, इस आर्ग्यूमेंट को वैलिड नहीं माना। अभी जो पूरा केस है तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो सवाल हैं हमारे सामने कि जुडिशरी क्या ओवर रीच कर रही है जब वो सीबीआई को उसकी पावर्स बता रही है, और बात है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या जब जनरल कंसेंट कोई स्टेट विड्रॉ कर ले तो क्या सीबीआई फिर भी केस रजिस्टर कर सकती है? ऐसा सीबीआई लगातार कर रही है। तो सीबीआई भी अपनी बाउंड्री को ओवरस्टेप कर रहा है, ओवरस्टेपिंग द पावर्स। तो ये जो चीज़ें हमारे सामने सवाल के रूप में आ रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक मामले में सामने आई। और आपको पता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दो स्टेट्स के बीच में, स्टेट वर्सेस स्टेट हो जाए या सेंटर यूनियन वर्सेस स्टेट हो जाए, तो इन सभी मामलों को आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर लेते हैं। और ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता किसका है? ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आपके सुप्रीम कोर्ट का। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे इस तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो स्कोप ऑफ आर्टिकल 131 स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे यहाँ पे अपने जजमेंट में ही बताया है, जिसको हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 131 के हिसाब से मेन पॉइंट ये है कि हमारा क्योंकि क्वासाई फेडरल स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है? क्वासाई फेडरल। हमने स्टेट्स को पावर तो दी हुई है कानून बनाने की, लेकिन क्या है, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो स्टेट लिस्ट पे यूनियन कभी कभी कानून बना देता है, और अगर यूनियन वर्सेस स्टेट हो जाए तो यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। आजकल यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जो स्टेट लॉज हैं वो यूनियन लॉज के अगेंस्ट जा रहे हैं या कुछ अलग हटके कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें जो डिस्प्यूट में आता है, फिर आप देखेंगे दो राज्यों के बीच में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट में प्रॉब्लम होती है, जिसमें कावेरी नदी का एग्जाम्पल हम सबको पता है। नर्मदा नदी के ऊपर भी एक बार वाद विवाद हुआ था गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में, मध्य प्रदेश सरकार के बीच में। तो इन सभी मुद्दों को रिजॉल्व करा सकता है आर्टिकल 131 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट, राइट। इसीलिए ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रखा गया सुप्रीम कोर्ट पे अंडर आर्टिकल 131 टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट्स। नाउ पॉइंट हियर इज लीगल प्रिंसिपल। देखिए आपके लिए क्या है लीगल प्रिंसिपल, यहाँ पे ये निकल के आ रहा है जो साफ साफ हमारे लिए सामने ये कह रहा है दैट फॉर अ सूट टू बी मेंटेनेबल अंडर दिस प्रोविजन टू कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। इस तरह की चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। लीगल प्रिंसिपल है पहला कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, बिटवीन वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड दूसरा, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी, इट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट क्रूशियल टू द डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल राइट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट आंसरेबल होती है, गवर्नमेंट आंसरेबल होती है टू पीपल्स राइट, क्योंकि इस राज्य में रहने वाले लोगों के अधिकारों को अफेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट उसकी स्टेट, राज्य की सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट के अपने राइट्स होते हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जो इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट 131 के अंदर इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा सकता है। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 131 हमारे फेडरलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और इसको इसीलिए वाइडली और जेनरसली इंटरप्रेट करना चाहिए ताकि इंटेंडेड रेमेडी जो है, अल्टीमेटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट करना है, वो आर्टिकल 131 कर पाए। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1977 में आप देखेंगे टॉप कोर्ट ने कहा था कि बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव या रिस्ट्रिक्टिव व्यू स्टेट के राइट्स का आपको नहीं लेना चाहिए, राइट। लेकिन वर्डिक्ट जो जजमेंट आया था उसने क्लैरिफाई कर दिया था कि ये सिर्फ हमारा जो मतलब इस समय जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ये सब कोर्ट ने कहा है कि देखिए ये सब हमारी प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस जो गवर्नमेंट ने रेस किए थे, यूनियन गवर्नमेंट ने, उसको रेफ्यूट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। भाई
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 131 का यूज़ करके जो सीबीआई केसेस रजिस्टर कर रही है, सीबीआई रजिस्टरिंग केसेस, ठीक है, अगेंस्ट वेस्ट बंगाल ऑफिसर्स। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 131 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी। सुप्रीम कोर्ट में कहा सर ये वायलेशन है ऑफ रूल ऑफ लॉ, क्योंकि सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट, डीएसपीए एक्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। तो वहाँ पे कंसेंट को इम्पोर्टेंस दी गई है और कंसेंट विड्रॉ कर लेने के बाद सीबीआई कैसे केस रजिस्टर कर सकती है। तो उसके बाद फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जजमेंट दिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट का जो केस था, क्योंकि उसने उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया था, तो वेस्ट बंगाल के केस को वैलिड माना। और यूनियन गवर्नमेंट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच हम नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप कर रहे हैं, क्योंकि आप सीबीआई को रजिस्टर और इन्वेस्टिगेट करने की पावर दे रहे हैं, जबकि 16 नवंबर 2018 को इस स्टेट ने अपनी जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली है। नाउ दिस पर्टिकुलर वर्डिक्ट दैट हैज़ कम इज़ अ वेरी ह्यूज ब्लॉट ऑन द वे सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज परफॉर्मिंग एंड एक्टिंग राइट नाउ। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच थी, उन्होंने सेंटर के ऑब्जेक्शंस को रेफ्यूट कर दिया और वेस्ट बंगाल की मांग को, जो वेस्ट बंगाल का स्टेटमेंट था उसको वैलिड बोला। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं नहीं सर, ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड एजेंसी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर बात को भी डिनाई कर दिया और बोला कि ये कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। पर यूजिंग वेरियस प्रोविजंस ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 under which the CBI functions, okay, the bench concluded the very establishment, exercise of powers, extension of jurisdiction, superintendence of the DSP, all vest with the government of India. Establishment, exercise of power, jurisdiction का extension और superintendence, ये सब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सीबीआई आपके अंडर नहीं आती है। फिर आप फर्दर देखेंगे कि जनरल कंसेंट है क्या। तो सेक्शन 6 है डीएसपी एक्ट का, जो कि ये कहता है कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की जॉइंट अगर आप रीडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ पावर है सीबीआई का, जहाँ पे स्टेट को, मतलब यूनियन टेरिटरी का अगर है तो कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली यूनियन एजेंसी है। और जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अगर आ जाए तो कंसेंट क्या होता है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है सेक्शन 6 और सेक्शन 5 से। फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे जनरल कंसेंट स्टेट्स को दी जाती है सीबीआई को सीमलेस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ अगर करप्शन केसेस करें उस स्टेट के अंदर तो, ठीक है। अदरवाइज केस स्पेसिफिक कंसेंट ली जाती है। दिस इज़ अ जनरल कंसेंट को कंसेंट बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है। अगर मान लीजिए सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट ना ले पाए तो उसकी ज़रूरत नहीं होती अगर जनरल कंसेंट स्टेट ने दे रखी है। ठीक, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। द परमिशन इज क्रूशियल सिंस पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर सब्जेक्ट्स दैट फॉल विद इन द स्टेट लिस्ट। ओके, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये स्टेट के अंदर आता है, स्टेट की पावर के अंदर आता है शेड्यूल 7 की बात करें तो। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज और रेलवे एरियाज़ की बात करें तो ऐसी कोई कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये जो मामला हमारे सामने आया, ये आप देखेंगे जुलाई 2024 का, ये आपको न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, जो कि आप द हिंदू की देख रहे हैं। और वहीं आप देखेंगे उसी जुलाई में लाइव लॉ के ऊपर ये आर्टिकल आ चुका है। तो ये लीगल के लिए भी ज़रूरी है, ध्यान देने वाली बात है, ये आपके जीके के लिए भी ज़रूरी है। और सेंटर वर्सेस स्टेट यानी फेडरलिज्म का जो डिबेट है, फेडरलिज्म क्योंकि हमारे पॉलिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंडियन पॉलिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फेडरलिज्म के ऊपर जब वाद विवाद हो तो इसमें जो मॉरल क्वेश्चंस हैं, या मॉरल क्वेश्चंस कह लीजिए या फिलोसफिकल क्वेश्चंस कह लीजिए, या आपके लॉजिकल रीजनिंग में भी दिखाई दे सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसका सिंपल रीज़न ये है कि इस तरह की चीज़ें मॉरल क्वेश्चंस वाली, गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पीपल वर्सेस गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई जजमेंट आ रहा है,
तो इस तरह की चीज़ों पे क्लैट कंसोर्शियम थोड़ा सा फोकस करता है। और क्योंकि एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं इसके ऊपर, तो आपको समझना चाहिए कि ये टॉपिक, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की न्यूज़ आपको हर एस्पेक्ट में हेल्प करेगी। और ऑब्वियसली ये लीगल तो है ही, क्योंकि मतलब लीगल नॉलेज में आ ही सकता है, क्योंकि लाइव लॉ ने इसको आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को क्या है, कवर किया हुआ है। So these are the aspects that you should keep in mind while you are reading this particular topic. So if you have missed this topic in July, please go back and try to refer to this particular topic, okay? Now we are moving to the next leg of our RTM series, where we discuss about the questions, and very rapidly I'm going to take you through these questions, as this is a recorded format today. This particular video is in the recorded format. So I would urge and rather request all of the students to quickly go through the questions, choose their options, and then wait for the explanation subsequently. In toto, we have around 11 to 12 questions. So kindly go through the questions, make a list of that topic, try to research that particular topic. Doesn't matter if you know the question or you don't know the question. Answers to the question, that does not matter. What matters is that today you have seen these questions, you didn't know the answer, then you went back, prepared these topics, so that अगर ये टॉपिक दोबारा कल को लेट से मॉक में रिपीट हो जाए, लेट से क्लैट के पेपर में आ जाए, लेट से किसी और फॉर्मेट में आपसे कहीं और पूछ लिया जाए, स्लैट का पेपर होने वाला है, एलेट का पेपर होने वाला है, तब उस मोमेंट पे आपको ये टॉपिक्स के बारे में पता हो। कुछ टॉपिक्स हमारे पुराने हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे बहुत रिसेंट हैं, जैसे कल के न्यूज़पेपर से। तो सबसे पहला सवाल है, ये तो बहुत पुराना टॉपिक हो गया, कि इनमें से कौन सा पर्सन जो है सीबीआई का प्रेजेंट चीफ है? प्रवीण सूद, सुबोध कुमार जायसवाल, सदानंद वसंत दाते एंड तपन कुमार देका। सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? वेल, यू कैन चूज़ योर आंसर्स, अपने मन में आप चूज़ कर लीजिए। द आंसर इज़ प्रवीण सूद। प्रवीण सूद हैज़ रिप्लेस्ड सुबोध कुमार जायसवाल। सदानंद वसंत दाते आपके नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हैं, और तपन कुमार देका आपके आईबी, ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हैं। प्रवीण कुमार सूद की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट वो कर्नाटका में 1986 बैच के, आपको दिखाई देगा, ही इज़ कर्नाटका बैच का आईपीएस ऑफिसर, कर्नाटका कैडर का, राइट। He was also serving as a Director General of Police in Karnataka. Now he is a Civil Engineering IIT Delhi graduate, Public Policy and Management IIM Bangalore, and Maxwell School of Governance, Syracuse University, New York. तो काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक लॉरेल्स भी इनके पास हैं। ऑब्वियसली फिर यूपीएससी क्लियर किया है इन्होंने, बिकॉज ही इज़ एन आईपीएस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, which among the following key persons are part of high power selection committee which appoints the director of CBI as per section 4A of Delhi Special Police Establishment Act 1946? Now ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। Why? I'll tell you why. Because writ petitions were filed. Writ petitions were filed before Supreme Court. हालांकि रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती है वो आपसे सवाल के रूप में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि पिटीशन फाइल हुई है, कोई जजमेंट नहीं आया। लेकिन रिट पिटीशन में ये बात बार बार आ रहा है, क्योंकि सेंटर जो देखिए, सेंटर जब इंट्रूड करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें भी 3 मेंबर पैनल है, ठीक है। और अगर यूनियन गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो उसमें जो अपॉइंटमेंट होता है सेंटर के द्वारा, उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? वेल, इसका आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। द आंसर इज़ ऑल अबव द अबव। लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है। लेकिन जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें और उसमें जब अपॉइंटमेंट की बात है, तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड फर्दर एक थर्ड कैबिनेट मिनिस्टर आपको दिखाई देगा। तो ये हाईएस्ट सिलेक्शन कमेटी सीबीआई का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अलग अलग है, ये आपको ध्यान में लेके चलना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन एक क्लैट एस्पिरेंट को इतनी बारीकी समझ में नहीं आती है, इसलिए वो कंफ्यूज हो सकता है। तो आपको ये पॉइंट नोट हो गया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। वैसे आप ये आर्टिकल देखिए, ये 2023 का आर्टिकल है, मई 2023 का, तो 1 साल पहले से भी पुराना आर्टिकल है। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, सीबीआई न्यूज़ में बनी रहती है, तो ये चीज़ हमारे लिए रेलेवेंट हो ही जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इंडिया एंड यूएई हैव एंटर्ड इनटू एमओयू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब
दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो कॉमन सेंस आपको लगाना रहेगा, कॉमन सेंस यूज़ करके आप एलिमिनेट करिए ऑप्शंस को, ठीक है, एलिमिनेशन लगाइए, आप कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, रेसेंडे न्यूक्लियर फ्यूल फैक्ट्री, कालापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट और तारापुर, क्योंकि ये इंडिया में है और ये भी इंडिया में है। अब आप एक चीज़ समझिए, यूएई को ज़रूरत है इंडिया की, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी में बात करें, हम लोग कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं वो भी हम देख लें। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी में बात करें तो आपको पता है कि इंडिया के पास तो न्यूक्लियर एनर्जी 1960s में हमने पा ली थी, ठीक है। तो इंडिया डज़ नॉट नीड हेल्प। इंडिया को अगर हेल्प चाहिए है तो इंडिया को हेल्प चाहिए है सिर्फ न्यूक्लियर बम बनाने में, या वो टेक्नोलॉजी के लिए जो फ्यूल चाहिए रहता है, क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसका सोर्स नहीं है बहुत ज़्यादा, हमारे पास थोरियम का सोर्स है, यूरेनियम हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए रहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें बहुत अच्छे से कंट्रोल करने आता है। तो इसीलिए ये दो ऑप्शन हम सीधे सीधे एलिमिनेट कर देंगे। अब इन दो में आपको चूज़ करना चाहिए एंड द आंसर इज़ बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, ये याद रखिएगा। एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी एंड न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने ये एमओयू बनाए। 4 एमओयू हुए हैं, जिसमें से एक एमओयू ये भी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपको 6 सितंबर के टॉपिक से, 6 सितंबर 2024 के टॉपिक से जो की फैक्ट है वो निकल के आ गया है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आप एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट करिए कि जो बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो अरेबियन कंट्रीज़ का, अरेबियन रीजन का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बाकी किसी कंट्री के पास, आप गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल उठा लीजिए, तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में आपको बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट का, क्योंकि ये अरब रीजन का ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके मेंटेनेंस के लिए इंडिया के साथ एमओयू हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। दूसरी बात, 10 सितंबर को आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये एनडीटीवी का न्यूज़ है, एनडीटीवी ने कवर किया है। 6 सितंबर को आपको दिखाई देगा कि इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया हुआ है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब देखिए, ये जीएसटी की मीटिंग होती है, लेकिन ये क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। ये ऐसे सवाल देखिए एलेट में बहुत पूछे जाते हैं, क्लैट में उतना रिलेवेंस उनका नहीं है, क्लैट में आने की चांसेस कम है, एलेट में ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन के रूप में देखा जाएगा। जीएसटी काउंसिल वैसे कैसी बॉडी है, तो आर्टिकल 279A, जितना मुझे को सही याद आ रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ साथ ये साल भर में वैसे 3 मंथ के गैप में 3 मंथली मीटिंग करने की कोशिश करती है जीएसटी, लेकिन ऐसे कोई फिक्स पैटर्न इनका देखा नहीं जाता है। कोशिश करते हैं हर क्वार्टर में मुलाकात करें, और जो टैक्स रेट्स होते हैं उनको चेंज करने की कोशिश करती है। साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो ग्रांट है टैक्सेशन पावर छीनने की वजह से उनको जो कम हो रहा है, उसका अप्रूवल देती है, इन तमाम तरह की चीज़ें और होती हैं। इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर इस मीटिंग को चेयर करते हैं, और इस साल 54th मीटिंग अभी हमको देखने को मिली है। अगला सवाल है कि उनमें से कौन सी कंट्री है साउथ वेस्ट एशिया की दैट डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी। अब देखिए, अगेन ये स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ये आपको ज्योग्राफी ओरिएंटेड क्वेश्चन दिखाई देगा। क्यों इस तरह के सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये रीजन जो है वो न्यूज़ में है, रीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज़ इन न्यूज़, और रीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट जब न्यूज़ में होती है तो वो अपने आप जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए ज्योग्राफी। अब देखिए, सीरिया, लेबनान और इजराइल, दे ओपन आउट, जॉर्डन डज नॉट, एंड डेफिनेटली द आंसर वुड बी जॉर्डन। जॉर्डन एक रिवर के अराउंड, जॉर्डन एक रिवर है, रिवर जॉर्डन, जो कि आपको दिखाई देगा कि अगर इजराइल के बाउंड्री में इस तरह का अगर इजराइल का बाउंड्री है तो यहाँ पे है जॉर्डन, ठीक है। ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा सीरिया है, लेबनन है, सीरिया है और लेबनन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है एंड द आंसर इज जॉर्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, अगला जो टॉपिक है हमारा वो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। 10 सितंबर को आप देखेंगे न्यूज़ आई है इंडियन एक्सप्रेस पे, और यहाँ पे आप देखेंगे 25 जून को द हिंदू ने कवर किया है। हालांकि
स्टेट में आंध्र प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ कवर हुई है। बायो रिसोर्स सेंटर्स बनाने की बात है नेचुरल फार्मिंग के लिए, और यहाँ पे बात आ रही है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग क्या स्टॉल हो चुका है। तो दोनों मुद्दे अलग अलग टाइम पे न्यूज़ में हैं, और ये टॉपिक क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, और गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं इस साल की वो क्लैट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूप लेती हैं। एक आधे सवाल आपको देखने को गवर्नमेंट स्कीम से मिल ही सकते हैं, हर साल ही आते हैं, तो हम क्यों छोड़ें ऐसी गवर्नमेंट स्कीम वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं आपसे जो पूछना चाहता हूं मैं, कि इनमें से कितना टारगेट एरिया किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड को कवर करेगा, कितने एकड़ के एग्रीकल्चर फील्ड को कवर करेगा अंडर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। 5 लाख, 6.5, 7.5 लाख एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप चूज कर लीजिए फटाफट अपने माइंड में। वेल, इसका आंसर आपने चूज कर लिया होगा। आंसर इज 7.5 लाख एकड़ हेक्टेयर्स। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग 7.5 लाख हेक्टेयर करेगा 15,000 क्लस्टर बना के, जिसमें ऑब्वियसली हम नेचुरल फार्मिंग में जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स है, उसको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। सस्टेनेबल, जो हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर 7.5 लाख हेक्टेयर्स है, और आपको ये स्कीम जो है स्कीम इन न्यूज़ की तरह प्रिपेयर कर लेना चाहिए इस टॉपिक को। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसी हैज़ वन पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज है प्राइज 2024 फॉर इट्स कवरेज ऑफ गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट दिस ईयर। अब देखिए, पुलिट्जर एक ऐसी चीज़ है, पुलिट्जर अवार्ड्स जो हैं, पुलिट्जर अवार्ड्स मीडिया को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? मीडिया को दिए जाते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, लिटरेचर को भी दिए जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अमेरिका में रेलेवेंस में है। और एलेट के ऊपर एलेट ने इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। एलेट ने भी पूछे हैं, मेरे टाइम पे मुझे याद है बैक देन इन 2016 स्लैट ने भी पुलिट्जर के ऊपर सवाल पूछा हुआ था। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जैसे कि कल एक बच्चा पूछ रहा था कि सर एनएलयू दिल्ली कैसे मिलता है, तो एनएलयू दिल्ली के लिए कुछ अलग से जो प्रिपेयर करना रहता है वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स ही करना रहता है। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में पुलिट्जर आ जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड आ जाता है, प्लिट्स प्रिट्जकर आ जाता है, ठीक है, फिर आपके गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आ जाते हैं, ऑस्कर आ जाता है, आफ्टर दैट नोबेल प्राइजेस आ जाते हैं, फिर हमारे यहाँ पे और बुकर प्राइज़ आ जाता है। तो तमाम तरह के अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो होते हैं वो हमें देखना चाहिए। फिर इंडिया में जैसे परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र दिए जाते हैं। इस बार आपको दिखाई देगा कि विज्ञान रत्न अवार्ड भी दिए गए। फर्दर आप देखेंगे आप भारत रत्न दिया गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस तरह के अवार्ड्स, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। तो ये पूरे अवार्ड की लिस्ट है। फिर स्पोर्ट्स जो एक चीज़ होती है, एक स्पोर्ट एक फैक्टर होता है, स्पोर्ट इवेंट्स जो होते हैं, ठीक है, अब वो इंडिया के हों, वो वर्ल्ड के हों, वो एलेट का फेवरेट टॉपिक है। फीफा के ऊपर सवाल आता है, तो फीफा जब होता है या वर्ल्ड कप होता है किसी चीज़ का, तो वो उसके सवाल आपको एलेट में 100% दिखाई देंगे, क्लैट में भी ना दिखाई दें। तो एलेट में आ चुका है 2022 में पुलिट्जर के ऊपर क्वेश्चन, और काफ़ी बार एलेट ने इस चीज़ को पूछा है। मैं तो सबसे लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ। तो आपको इसका आंसर है, आपने सोच ही लिया होगा, इसका आंसर है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक को गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट कवर करने की वजह से ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आना चाहेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द पुलिट्जर प्राइज। ये प्राइस लिखा हुआ है, सॉरी, प्राइज 2024। अगेन देखिए, ये स्टैटिक एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जैक्टली इसी तरीके का सवाल, इसी तरह का कुछ सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एलेट में पूछा गया है, PYQ एलेट में आया है। तो आपको जो सवाल देने की जो मंशा है,
जो भी हम यहाँ से आपसे सवाल पूछते हैं, पर्टिकुलरली मेरे रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज़ में मैं जो भी सवाल पूछता हूँ, दे आर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय द वे पास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। कोई भी सवाल, जैसे कल हमने एक आरटीएम में एक सवाल पूछा था कि किस कवि ने, किस पोएट ने द किंग्स थ्रेशोल्ड में हंगर स्ट्राइक के बारे में बात करी है और बोला है कि एवरीथिंग होगा, कि तो बच्चे ने बोला कि हाउ इज़ दिस रेलेवेंट नाउ। इस तरह के सवाल क्लाट कंसोर्शियम ने अपने क्लाट के पेपर में डाले हैं, जिनका रेलेवेंसी कोई नहीं होता टॉपिक के साथ, बड़े अजीब से लगते हैं, बट क्योंकि वो न्यूज़पेपर आर्टिकल में आया रहता है उस विषय पे उसी साल, तो इसीलिए क्लाट कंसोर्शियम ये समझता है कि आपने एटलीस्ट 2 अखबार तो कवर किए हैं साल भर, क्योंकि क्लाट कंसोर्शियम खुद इस बात को मानता है कि न्यूज़पेपर सोर्सेज आर द ओनली एंड द प्राइमरी सोर्सेज इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर क्लाट एग्जामिनेशन। अब इसको क्या है, बहुत सारे टीचर्स कुछ केटर कर पाते हैं, कुछ केटर इन नहीं कर पाते। ऑब्वियसली देखिए, लॉजिकल लीगल के टीचर्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन दे आर नॉट रियली वेल वर्स्ड विथ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द न्यूज़, दे आर नॉट रियली थरो विद द टॉपिक्स। तो वो आपको स्किल सेट डेवलप करेगा, करने में मदद करेंगे, आपकी स्किल्स डेवलप करने में मदद करेंगे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज देने में आपकी मदद करेंगे। जीके टीचर्स आपको फैक्ट्स याद करवाने में हेल्प करेंगे, लेकिन आपकी प्रिपरेशन का जो सारथी है, जो दोस्त है, जो रूल बुक है, जो गाइड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अखबार है। तो अखबारों के साथ आप बिल्कुल ऐसे मत उनको नेगलेक्ट करिए, बिल्कुल ऐसे ट्रीट मत करिए कि न्यूज़पेपर्स जो हैं वो आपके लिए कठिन होते हैं, बिकॉज आप उसको ये सोच के पढ़ते हो कि क्लैट देना है इसलिए पढ़ रहे हैं, जबकि आपके न्यूज़पेपर को, ऑलमोस्ट एक न्यूज़पेपर को तो रोज़ करना है। अगर आप आगे फर्दर जुडिशरी देना चाहते हैं, फर्दर आप आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फर्दर आप सरकारी सेवा में आना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर आप किसी टॉप नॉच फर्म का इंटरव्यू निकालना चाहते हैं, आप एमबीए करना चाहते हैं, आपका जो करंट अफेयर्स का जो प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो अब न्यूज़पेपर्स को अपना दोस्त बनाएं, सरदर्द लेके ना पढ़ें अखबारों को, क्योंकि ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर करनी है अगर इस प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ना है। तो हमें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, उससे हमारी अभिव्यक्ति जो होती है, हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, या हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मुलेट होते हैं। तो उसी लिए पुलिट्ज़र प्राइज़ किसको दिया जाता है, इसका आंसर आप चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ गिवन टू अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसीज। 107th edition of such awards were hosted by. It is given for journalism, literature, drama and music. The answer is D, all of the above. Answer is D, all of the above. Let's move to question number 9. All right. Who among the following reporters has been awarded Pulitzer Prize for highlighting the suppression of dissent by the regime of Vladimir Putin in Russia, indicating the state of political prisoners? Vladimir Kara-Murza, Katie Engelhardt, Justice Chang, Alexei Navalny. अलेक्सी नेवेल्नी तो देखिए वो पॉलिटिकल डिसिडेंट था, उसको आप देख के तुरंत ही इग्नोर कर सकते हैं। व्लादिमिर कारा मुर्जा, केटी एंजल हार्ट और जस्टिस चांग में कौन होगा? सो आई थिंक आपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। यू मस्ट हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि कौन होगा इसका। आंसर है इसका व्लादिमिर कारा मुर्जा। तो देखिए, इस तरह के पर्सन स्पेसिफिक जो अवार्ड्स होते हैं, अब पुलिट्ज़र आप देखेंगे तो हम आपको अभी पुलिट्ज़र के बारे में बताने वाले हैं। पर्सन स्पेसिफिक अगर अवार्ड्स हैं तो इनको आप सीधे सीधे रट लीजिए, ठीक है। इनकी लिस्ट बनाइए, इनकी शक्लें देखिए और इनको क्या कर लीजिए, आप रट लीजिए। रटने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको बस एग्जैक्टली ऑप्शन में देखना है। वैसे तो पुलिट्ज़र प्राइज़ इन तीनों को इस साल दिया गया है, लेकिन रशिया के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे इसको मिला। एक और नाम आता है माइकल हॉफमैन। माइकल हॉफमैन साहब को क्यों दिया गया है पुलिट्ज़र, ये भी देखेंगे। तो 4 पर्सन स्पेसिफिक अवार्ड्स हमारे को इस साल दिखाई दे। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये 7 मई 2024 की न्यूज़ है जो कि लाइव मिंट में कवर हुई थी। अब लाइव मिंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है करंट अफेयर्स का, और थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सोर्स है क्योंकि इसको जनरली लोग रेफ़र नहीं करते। हिंदुस्तान टाइम्स भी ऐसा ही एक सोर्स है जो कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल माना जाता है, लेकिन क्या है, आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को भी लोग रेफ़र नहीं करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से भी जीके जो है, न्यूज़ जो है, आर्टिकल्स जो हैं वो क्लाट में पास्ट ईयर पेपर में पूछे हुए हैं। फिर एक डाउन टू अर्थ मैगज़ीन है जिसको लोग रेफ़र नहीं करते, ठीक है। डिप्लोमेसी नाम की एक मैगज़ीन है, फॉरेन डिप्लोमेसी। फॉरेन डिप्लोमेसी से क्लाट 2024 में पैसेज उठा के पूछा था, तो ये भी एक सोर्स है, लेकिन ये पेड है तो ये तो आप नहीं कर पाएंगे। बाकी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मे का टॉपिक है, आगे बढ़ेंगे।
हेडिंग से जो भी मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था वो तो देखिए मैंने सिर्फ हेडिंग से ही पूछा था, बाकी न्यूज़ सोर्सेज ने भी इसको कवर किया है। फर्दर आप देखिए नोट्स ऑन पुलिट्जर प्राइज में आ जाएं। इस बार कोलंबो यूनिवर्सिटी ने 108th एडिशन किया है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में मिस्टेक हो गई है, जस्ट अ मिनट, 108th एडिशन होगा बेटा, 108th एडिशन होगा और फिर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे न्यूज़ में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये रिपोर्ट दी है। 108th एडिशन जो है वो पुलिट्जर प्राइज सेरेमनी का 7 मई को हुआ। अमेरिकन जर्नलिज्म, लिटरेचर, ड्रामा एंड म्यूज़िक, अमेरिकन उसमें दिया जाता है, राइट। हाईएस्ट अवार्ड है दिस। इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स को काफ़ी ज़्यादा वन ऑफ द थ्री पुलिट्जर फॉर रिपोर्टिंग ऑन गाजा कॉन्फ्लिक्ट दिया गया। रूटर्स ऑफ स्टाफ को दिया गया नेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी। रूटर्स टीम क्लिंच द विन फॉर देयर आई ओपनिंग सीरीज ऑफ अकाउंटेबिलिटी स्टोरीज which delved into automobile and aerospace ventures led by billionaire Elon Musk. Moving to the next part, स्टाफ ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल के ऊपर एक एग्जामिनेशन किया था। स्टाफ ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग ऑन हमास lethal attack in southern Israel on October 7, Israel's intelligent lapses and sweeping lethal retaliation by the Israeli military in Gaza, पुलिट्जर कमेटी सेट। फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया, जिसमें कि उन्होंने मूविंग फोटोग्राफ्स ली हैं इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स की एंड देयर चैलेंजिंग जर्नी फ्रॉम कोलंबिया इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर। अब देखिए कोलंबिया यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर में ये टॉपिक भी न्यूज़ में है, डारियन गैप जंगल। और डारियन गैप जंगल जो है ये सिंस जनवरी न्यूज़ में है और फिर मई में आप देखेंगे कि पुलिट्जर दे दिया गया। तो डारियन गैप जंगल से जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, माइग्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट थीम इन 2024। तो 2025 के क्लैट में माइग्रेशन के ऊपर अगर सवाल आ जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पुलिट्जर प्राइज में इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड USG ऑडियो के स्टाफ को दिया गया बिकॉज दीज टू न्यूज़ रूम्स वर अवॉर्डेड फॉर देयर इम्पैक्टफुल सीरीज ऑन हेट क्राइम इन शिकागो फ्रॉम 1990s। ओके, देन फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ रूटर्स को क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अनफिल्टर्ड और अर्जेंट फोटोग्राफ्स ली हैं डेडली अटैक बाय हमास इन इसराइल 7 अक्टूबर को। जस्टिस चांग, लॉस एंजलिस टाइम्स के जस्टिस चांग को क्या दिया गया, ये अवार्ड दिया गया चांग की मूवी को दिया गया, ठीक है, बिकॉज वो मॉडर्न मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट लेग ऑफ पुलिट्जर प्राइज। केटी एंजल हार्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स की कंट्रीब्यूटिंग राइटर हैं, एंजल हार्ट वाज ऑनर्ड फॉर हर इम्पार्शियल डिपिक्शन ऑफ अ फैमिलीज लीगल एंड इमोशनल चैलेंजेस amid a matriarch's progressive dementia. According to the committee, her article sensitively delves into the enigma of a person's core identity. तो थोड़ा सा अगर फिलोसॉफिकल पैसेज आपको पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हैं कि एंजल हार्ट का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके लिए ये अवार्ड दिया। फिलोसॉफिकल पैसेजेस आपको लॉजिकल रीजनिंग में हेल्प कर सकते हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारी प्रिपरेशन में। व्लादिमिर कारा-मूर्जा आपको दिखाई देगा, ही इज़ फ्रॉम वॉशिंगटन पोस्ट। The committee emphasized Karamurza's impassioned columns penned considerable personal risk from his prison cell. और ये वार्निंग देते हैं repercussions of dissent in Vladimir Putin's Russia while advocating for a democratic future for his nation. Now these are the awards. इनके बारे में आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following programs is associated with the world's first private spacewalk? एकदम recent न्यूज़ है ये, एकदम recent न्यूज़ है, ठीक है। recent न्यूज़ से एकदम क्वेश्चन आया है 2-3 दिन। आपके पास ऑप्शन है ओरियन प्रोग्राम, आर्टेमिस मिशन, पोलरिस डॉन और जेमिनी प्रोग्राम। अपने आंसर्स को चूज कर लीजिए। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल हैव रेड द न्यूज़ एंड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पोलरिस डॉन, ठीक है। स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन रॉकेट जो यूज़ किया है वो फैल्कन 9 यूज़ किया है, फैल्कन 9, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू
दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एज यू कैन सी, रिकॉग्नाइज दिस पर्सन इन द फोटोग्राफ, तो और अच्छी बात है. नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए. हु अमंग द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डू अ स्पेस वॉक इन 1965. 1965 में स्पेस वॉक करने वाले वो एस्ट्रोनॉट कौन से हैं पूरी दुनिया के पहले पहले एस्ट्रोनॉट कौन से हैं? एड वाइट, एलेक्सी लियोनोव, स्वेटलाना येवजेन येवना सवित्स्काया. तो स्वेतलाना सवित्स्काया याद रखिए. अब इनमें से आंसर क्या है? आपसे क्या पूछ रहा है? एस्ट्रोनॉट 1965. ठीक है, एस्ट्रोनॉट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का होता है, कॉस्मोनॉट रशिया का होता है. तो भाई ये दोनों नाम तो हमें रशियन लग रहे हैं, इसीलिए वी गो विथ एड वाइट एंड द आंसर इज ए इटसेल्फ. तो आप देखेंगे कॉमन सेंस अगर आप थोड़ा सा लगाएं इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आप कॉमन सेंस लगा के एलिमिनेट कर सकते हैं अगर डेटा फैक्चुअल नहीं है और कॉमन सेंस अलाउ करता है तो. हालांकि नॉलेज का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, लेकिन नॉलेज विथ कॉमन सेंस होता है तो वो हमें स्मार्ट प्रिपरेशन में हेल्प करता है. चलिए आगे आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 12 है. अगेन आप इस पर्सन को रिकग्नाइज कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉस्मोनॉट इन द वर्ल्ड टू डू अ स्पेस वॉक इन द ईयर 1965. अब कॉस्मोनॉट का मतलब रशियन आपसे पूछ रहा है. रशियन एस्ट्रोनॉट कौन है? वेल, इसमें आप अपने ऑप्शन चूज कर लीजिए. एंड द करेक्ट आंसर इज एलेक्सी लियोनोव. द करेक्ट आंसर इज एलेक्सी लियोनोव. ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन है, इनका नाम याद रखिएगा. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू डू द स्पेस वॉक, है ना श्वेतलाना? तो इन तीनों फैक्ट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए. फिर अभी प्राइवेट स्पेस वॉक करने वाला वो व्यक्ति पहला कौन है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है. तो पोलरिस डॉन का स्पेस वॉक प्रोग्राम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के आरटीएम में, इसको हम देखते हैं. पोलरिस डॉन का जो स्पेस वॉक है, जैसा कि आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, देयर वर 4 पर्सन्स हु वर सेंट इनटू दिस पर्टिकुलर क्रू. क्या इन दिस मॉड्यूल, जो कि पोलरिस डॉन जिसका नाम है. एज यू कैन सी द पर्सन इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस. आई मीन दिस इज द farthest, the module has reached the farthest position. अपोलो प्रोग्राम से भी ज़्यादा दूर कोई आदमी गया है तो वो अब पोलरिस डॉन के अंदर गया है. ठीक है, तो पोलरिस डॉन स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन क्राफ्ट था, जो कि यहाँ पे अपने 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया, राइट. और ये फर्स्ट यूएस स्पेस वॉक 1965 में एड वाइट ने करी थी जेमिनी प्रोग्राम में. तो जेमिनी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हो गया. और अभी पोलरिस डॉन में क्या है, प्राइवेट स्पेस वॉक. तो जेमिनी जब किया था तो वो नासा ने किया था, अभी पोलरिस डॉन ने किया है तो वो प्राइवेट स्पेस वॉक है. इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस क्लार्ट को बहुत पसंद हैं. ये कोई और दुनिया का कोई और पेपर ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इस तरह के सवाल पूछ सकता है. ठीक है, तो आप इन पर भी नज़र रखेंगे, इनको इग्नोर नहीं करेंगे. फर्दर आप देखेंगे पोलरिस डॉन के स्पेस वॉक प्रोग्राम पे. और अगर हम बात करें तो ये वो व्यक्ति है जो पहली प्राइवेट स्पेस वॉक जिसने की है, एंड ही इज़ ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉट, वेरी ट्रेंड एस्ट्रोनॉट, जिसका नाम है जार्ड आइजक मैन. ठीक है, आइजक मैन याद रखिएगा. इज़ अ पायलट एंड बिलियनियर फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी Shift4. नाउ दिस अगेन इज़ अ वेरी क्लाट ओरिएंटेड क्वेश्चन. इज बैंक रोलिंग द पोलरिस मिशन एज ही डिड फॉर हिज इंस्पिरेशन 4 flight with SpaceX in 2021. He has declined to say how much he is paying for the missions, but they are likely to cost hundreds of millions of dollars. Now, SpaceX is basically taking money from these billionaires who have huge companies running, and SpaceX अपनी ख्याति भी और इनकी ख्याति भी, मतलब दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलाइन कर रहे हैं. इसमें आपको ये लास्ट ईयर का एक वारदात याद दिला देते हैं. टाइटन सबमर्सिबल जो कि टाइटैनिक के पास जाने वाला था, उसमें भी आप देखेंगे कि 4 बिलियनियर्स इन विच 2 पाकिस्तानीज वर देयर वर लॉस्ट. एक इम्प्लोजन हुआ था, इम्प्लोजन अंडर द सी हुआ था. तो इस विषय के बारे में भी आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये अगेन प्राइवेट पर्सन्स अपनी जो कहते हैं ना फैंसीज पूरी करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं. ज्वाइनिंग हिम इन मिशंस पायलट स्कॉट पोर्टिट इज़ अ रिटायर्ड यूएस एयरफोर्स लेफ्टिनेंट कर्नल. SpaceX के एम्प्लॉई सारा गिलिस 30 एंड एना मेनन 38, बोथ सीनियर इंजीनियर एट द कंपनी. सो द 4 पर्सन्स के नाम. फिर आपने एक चीज़ और देखी है कि 4 पर्सन्स जो हैं हमारे, वो 4 पायलट्स जो कि गगनयान के लिए अप्रूव हुए हैं, तो उनका भी नाम जो है, इनके भी जो नेम्स हैं,
ठीक है, वो आप अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा. ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर अपकमिंग क्लैट 2025. क्लैट 2026 के अगर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो क्लैट 2026 देखते हुए चले कि किस तरह के टॉपिक्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और इनका एग्ज़ाम में रेलेवेंस कितना है, किस तरह का इनका स्कोप आता है पेपर में. तो चाहे आप क्लैट दें, एलेट दें, स्लैट दें, क्योंकि ये तीनों पेपर आपके दिसंबर में होने वाले हैं. दिसंबर 2024 इज़ गोइंग टू बी अ जेम पैक्ड मंथ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा एफर्ट लगेगा, तो आपको नज़र रखनी चाहिए ऐसे टॉपिक में. ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज़. इतना ही था आज की सीरीज़ में. अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए. अपने फ्रेंड्स के साथ इस पर्टिकुलर कंटेंट को, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज an honest content, a good content should reach to the rightful aspirants. This was Harshvardhan Tripathi signing off from today's RTM session. Kindly stay tuned to the channel for the next session. I'll see you guys in the next.